Namaste, I am Dr. Rajat Bajaj. On this World Cancer Day, United by Unique is the theme given by WHO, which means that every patient's journey is unique. Every treatment plan made, every medication given has to be unique, tailor-made for the patient so that a personalized oncology approach can be given for best treatment outcomes. इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हमसे करवाया और इलाज के दौरान उनको जरूर कुछ दिक्कतें हुई। वो दिक्कतें जो सबने सुनी होंगी कि कीमो से, सर्जरी से होती हैं, लेकिन इलाज के बाद अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और वो अपनी इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताने के लिए और प्रेरित करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि अगर आपको या परिजनों को कोई ऐसी बीमारी है तो आपको इसके बारे में और समझना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए और अपना पूर्ण रूप से इलाज करा के इस कैंसर से निजात पाना है और स्वस्थ जीवन को दोबारा से पाना है। धन्यवाद। Hello, I'm Claudia Samuel. I'm 62 years old and I would to like at first to say thank you that you give me the space to share my story today. So I felt sick in 2023 in January with cancer, breast cancer called triple negative, so TNBC. And I was scared when I got this diagnosis, and also I was on the other side also relieved that I knew what this knot in my breast is, so I could start my fight. Luckily, I got referred to Dr. Bajaj in Fortis Noida. So he's a fantastic doctor. He sat with me down, he explained me the therapy plan, and I was lucky to get a new therapy added to the normal classic chemo. So I got 16 rounds of chemo, and along with immune therapy, the medication called Keytruda. So after this 16 rounds of chemotherapy, I got a 3-4 weeks rest. Then I underwent a mastectomy. And after the mastectomy, I got again maybe a month around rest. And then I started in August my 15 days of radiation. And after the radiation, I went on a tablet called Olaparib for 3 months. And then in November 2023, I got off all medications. And since this time, I'm in remission. It means I'm nearly 3 years now in remission. And my last PET-CT scan came back also clear. And what was wonderful was during my chemotherapy, it was end of March, I made a PET-CT scan. And I started in January my chemo, and on March 2023, the PET-CT scan already showed that I have no active cancer in my body anymore. So what is important, what I want to tell is, don't have a fear. If you find something, some anomalies in your breast or any other anomaly in your body, what you not can think about what could it be, go to the doctor, get it cleared up. Today, cancer is no longer a death sentence. So many therapies are available, and most of people get even, I would not like to say the word cured, but in remission, and live very normal lives, just like me. So thank you, Dr. Bajaj. Thank you for this Noida team. You have done a fantastic job. You stood on my side. You took my worries serious, and this all helped me to go through this. And today I'm standing here or sit here and I'm in remission and enjoy my life. Thank you very much. प्रणाम, मैं अमन खन्ना हूँ। आज से 11 महीने पहले 5 मार्च को मुझे ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 डिटेक्ट हुआ था। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर रजत बजाज जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनकी सुपरविज़न में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें मुझे 6 टारगेटेड थेरेपी और 6 कीमोथेरेपी दी गई। उसके बाद जुलाई में डॉक्टर कबीर रहमानी ने मेरी सर्जरी की, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। दोनों ही डॉक्टर बहुत तजर्बेकार और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं।
इनके सुपरविज़न में मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया। उसके बाद मेरी 15 दिन रेडिएशंस हुई। रेडिएशंस के बाद मुझे किसी भी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैं अब टारगेटेड थेरेपी पे हूँ, जो कि 18 वैक्सीन्स लगती हैं, जिसमें से 13 मुझे लग चुकी हैं। मैं हर मंथ हर 3 वीक्स के बाद जाती हूँ और मुझे वैक्सीन लगती है। और मैं बहुत खुश हूँ और कि मैं इस बीमारी से बाहर आ गई। सच बताऊँ तो मैं शुरू में बहुत परेशान हो गई थी कि इतनी बड़ी बीमारी, जैसे कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो नेचुरली 5-6 दिन तो मेरा पूरा परिवार और मैं एकदम डरे हुए थे। लेकिन 6ठे दिन के बाद मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इससे डरना नहीं है, मुझे इससे लड़ना है। और आप यकीन मानिए, योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन, योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन। जो आप सोचते हैं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। जब तक मैं ये सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, इस बीमारी को मुझे क्यों दे दिया ईश्वर ने, ये फलाना, तो तब तक मेरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे इससे लड़ना है, तो आप मानिए कि जितने साइड इफेक्ट थे वो सब माइनर हो गए, वो सब माइनर हो गए। और मुझे याद नहीं कि जितना मुझे लोगों ने कीमोथेरेपी को लेकर के डराया था, मुझे उतना इफेक्ट आया है। मुझे वो दिन याद नहीं जब मैं पूरा दिन बेड पे लेटी रही। एक्सेप्ट कि मुझे 2-4 बार याद है, जब मुझे मेरा पेट स्टमक अपसेट हुआ और उसका मैंने डॉक्टर रजत को मैसेज किया और उन्होंने मुझे एक पाउच बताया और वो मैंने लिया और 2 पाउच लेने के बाद मैं ठीक हो गई। वॉमिट तो मुझे आई ही नहीं और मैंने उसकी मेडिसिन भी नहीं खाई कोई भी। तो यकीन मानिए कि जब आप लड़ने के लिए सोचते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाती है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ना आयुर्वेदिक ना होम्योपैथिक, आप इस बीमारी के साथ ट्रायल नहीं ले सकते। आप प्लीज़ जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप एलोपैथिक मेडिसिन ले, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मेरा ट्रीटमेंट करने वाले दोनों डॉक्टर बहुत अच्छे थे। मेरे लिए वो एक फरिश्ते के समान है। मैं एंजल्स मानती हूँ उनको, जिन्होंने मुझे बहुत ही पीसफुली इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वायरी है, कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, कैंसर जर्नी, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। यू आर वेलकम ऑलवेज। प्लीज बी ब्रेव। इस बीमारी से डरना नहीं, लड़ना है। और सबसे पहले ट्रायल नहीं लेना है, अंग्रेजी ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद जब आप ठीक हो जाओ तो आप दोबारा ना आने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज अपने साथ कोई भी ट्रायल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू सो मच।